Good morning, my dear students. In the previous video, I have discussed 1, 2 and this one. And today I will discuss other. So let's see what are the others. First I will discuss derivative of e to the power x, then derivative of log x. So d by dx of e to the power x is e to the power x. If x is replaced by any other function, say fx, then we apply chain rule. It is e to the power of x d by dx of fx. If only x is there, so direct you can say e to the power x. Because the derivative of x is 1, so no need to write derivative of x. So here you can see if x is replaced by any other function, then chain rule is applicable. Suppose the question is y equal to e to the power tan inverse x. Now derivative of e is e to the power x. So derivative of e to the power tan inverse x is e to the power tan inverse x. Now the derivative of tan inverse x. E to the power tan inverse x. Then derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. So keep in mind, if e is there, derivative of e is e. tan inverse x है यहाँ पर, ये कॉपी किया आपने. कोई भी फंक्शन यहाँ हो सकता है. इन प्लेस ऑफ tan inverse x it may be sin x, cos x, it may be logarithmic function also. Suppose it is y equal to e to the power x cube, like this. So d upon dx of y. So derivative of e is e itself, ex cube, then derivative of x cube. And the derivative of x cube is 3x square. It is 3x square e to the power x cube. Suppose y is e to the power log x plus 4. Now d upon dx of y is derivative of e is e itself, e to the power log x plus 4. देन डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 4. ई के अलावा जो भी बचेगा उसको आपको उसका डेरिवेटिव आपको निकालना होता है. Now derivative of log x is 1 by x and derivative of 4 is 0. Suppose y is e to the power and root sin inverse x. So d upon dx of y is e का डेरिवेटिव e रहेगा, ध्यान रखना है. डेरिवेटिव ऑफ e is e itself. So derivative of e is e itself, e to the power sin inverse x. Now the derivative of रूट साइन इनवर्स एक्स, यानी ई के अलावा फिर जो भी बचेगा, जो पावर एक्स के प्लेस पर जो लिखा गया फंक्शन है उसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है. ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स सेम. नाउ ये कल डिस्कस किया था हमने स्क्वायर रूट फंक्शन का. इट इज़ 1 बाई 2 अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स. नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट करेंगे. e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये आपका सेम कॉपी कीजिए. देन द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सपोज द क्वेश्चन इज वाई e टू द पावर cos टू द पावर 4x. So first derivative of e, write down the derivative of e. Derivative of e is itself, so it e to the power cos 4x. Now write the derivative of cos to the power 4x. cos to the power 4x ये पावर फंक्शन है. पावर फंक्शन का कल डिस्कस किया था हमने. पावर को रिड्यूस करोगे फर्स्ट राउंड में आप 4 cos क्यूब x, देन डी बाई डी एक्स ऑफ cos x. स्टेप बाय स्टेप करिएगा आप, डायरेक्ट अभी मत करिएगा. ये आपने पूरा यहाँ तक कॉपी कर लिया. Now the derivative of cos x is minus sin x. At last use this minus in first place. This is the derivative. Suppose the question y is e to the power 3x square minus 1 whole cube.
तो फर्स्ट तो अभी ये इसको आप पावर फंक्शन मत समझिएगा, पावर फंक्शन नहीं है, ये ई फंक्शन है। ई फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा ई फंक्शन कॉपी करते हैं आप, देन डेरिवेटिव ऑफ ई को छोड़ के जो भी बचता है एक्सेप्ट ई, दिस इज द फंक्शन। अब इसको जब करेंगे आप, ये पावर फंक्शन है, ये जो पावर लगी इस पूरे फंक्शन की लगी है, सो इट इज़ कॉल्ड पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन में आपको पावर रिड्यूस करनी होती है, पहले राउंड में पावर रिड्यूस कर दिया आपने, 3 आगे लिख लिया, देन डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² - 1, पावर को छोड़ के जो भी बचेगा उसको डिफ्रेंशिएट करना है। एंड द लास्ट स्टेप इज 6x, 1 का 0 जाएगा। अब ये 3 है, सब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं चेन रूल के अंदर, तो 3 को आगे ले आया, ये सब मल्टीप्लाई करके आपका ये फाइनल आंसर आ गया। लॉग के 2 फॉर्मूले हैं आपके पास, लॉग एक्स एट बेस ई। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन में बच्चों ई साइलेंट रहता है, या तो ई लिखा होगा और या नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो वो ई ही है आपका, साइलेंट रहेगा। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है, ई लिखा हो तो भी, ना लिखा हो तो भी। अब अगर कोई और लिख दिया ई के प्लेस पे, तब फॉर्मूला चेंज है बच्चों। यहाँ लॉग एक्स का ए बेस पर फॉर्मूला है 1/x, एक स्टेप और बढ़ गया, लॉग ई एट बेस ए। ये ध्यान रखिएगा आपको, जैसे अगर मैं आपको पूछूं y इज़ लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव तो सिंपल 1/x है, क्योंकि यहाँ पूरे में आपको कभी लॉग में ई दिया नहीं होगा बच्चों, तो वो लॉग एक्स एट बेस ई कहलाएगा। अगर ये आपको अगर मैं देता y इज़ लॉग एक्स एट बेस 4 दे दिया होता है, तो एक ही पर इस पर कोई भी नंबर, तब ये फॉर्मूला आपको लगना है। तो 1/x तो होगा ही डेरिवेटिव, दोनों में लॉग में 1/x तो आना ही है। तो ई के नंबर के अलावा कोई और नंबर है, तब आपको फिर लिखना है लॉग ई एट बेस 4, जो भी बेस होगा आपका चलेगा। लॉग ई आपका इन्वॉल्व यहाँ है, इस तरह से होगा, ध्यान रखिएगा। तो चेन में भी ये वर्क करेगा आप। लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव ई बेस पे है, ई साइलेंट रहता है, तो लॉग एफ एक्स का 1/fx, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। सेम यहाँ भी वर्क करेगा। अब जैसे आपके पास हो गया लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो लॉग एक्स का 1/x है, ई बेस पर चल रहा है, लॉग एक्स का 1/sin x हो गया, फिर साइन एक्स को आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तो 1/sin x, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया cos x। फाइनली इसको आप cot x लिख सकते हैं इस तरह से। डेरिवेटिव ऑफ log sin x plus cos x, so d upon dx of y is log x का 1/x है, so it becomes 1/sin x plus cos x, then derivative of sin x plus cos x, sin x का cos x का माइनस sin x होगा। log की ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, log के साथ अगर नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं नंबर या कोई फंक्शन, तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरह से, log m n p इज log m plus log n plus log p। सेकेंड log m by n, log m minus log n, log x to the power n, and log x। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली, log a at base b, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अगर इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं आप, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। और दूसरा है आपका बेस चेंज प्रॉपर्टी, log a at base b का हम बेस चेंज कर लेते हैं, log का ई बेस बना लिया हमने, तो log a अपॉन log b इस तरह लिख सकते हैं। तो ये जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी ये लिखेंगे, इसके दोनों सेम है, ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी, हमने बेस चेंज कर दिया log का। ई बेस आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, हम ई बेस पे कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, मान लो कहीं पर लिखा हो आपके पास log sin x एट बेस cos x, ये लिखा है log sin x एट बेस cos x। तो अगर मैं इसको पहली वाली प्रॉपर्टी से लिखूंगा, तो इसको मैं लिखूंगा 1/log, log का रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम, तो रेसिप्रोकल करने पर ये आपस पे इंटरचेंज हो जाएंगे, log cos x बन जाएगा और बेस बनेगा sin x। ये और अगर मैं इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी से लिखना चाहूँ, तो इस वाले के साथ भी log लगाना है, इसके साथ भी log लगाना है, log sin x अपॉन log cos x, और बेस दोनों का ई है, बेस को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ई बेस की ज़रूरत, तो ये बेस चेंज प्रॉपर्टी कहलाती है। तो याद रखिएगा ये। अब log का कोई भी फंक्शन दिया हो, सबसे पहले ये देखना है log के साथ जो फंक्शन लिखा है उसमें से जो 3 प्रॉपर्टी हैं वो कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अगर यूज हो रही है तो पहले उस प्रॉपर्टी को यूज कर लीजिए। y log x क्यूब था, तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी से इसको 3 log x लिख दिया। अभी हम डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, log की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, log x टू द पावर n log x था, 3 आगे कर दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर, अब 3 तो कांस्टेंट रहा, log x का कितना होता है 1/x। इन केस आपने ऐसा नहीं किया होता, मान लीजिए आपको ध्यान नहीं आया, तो आपने चेन रूल लगाया डायरेक्ट, dy बाई डी एक्स इज, तो log x का 1/x होता है, 1/x क्यूब हो गया, देन डी बाई डी एक्स ऑफ log एफ एक्स का 1/fx, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करते हैं, एफ एक्स क्या है मेरे पास x क्यूब है,
तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा आपके पास 3x² अपॉन एक्स क्यूब। ये भी आपको कितना मिला 3/x मिला। तो आप ध्यान रखना, अगर आपने प्रॉपर्टी लग रही हो लॉग में तो ज़रूर लगाइएगा। इसी तरह से आपका अगला हो गया, अब ये देखिए सी दिस वन, लॉग के साथ जो फंक्शन है वो 2 मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी पहले यूज करिए, log m into n, log m plus log n, it becomes log x² plus log cos x। अब इसमें एक बार और लगा लीजिए प्रॉपर्टी log x⁴n वाली, 2 log x हो गई log cos। अब आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये स्टेप डायरेक्ट यहाँ जंप किया जा सकता था, इसके बाद सीधे इसको भी आप लिख सकते थे। अब करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट, dy/dx, d अपॉन dx ऑफ y, log x का 1/x है, यहाँ कोई चेन रूल नहीं है, 2/x हो गया, यहाँ चेन रूल लगेगा, तो log fx का 1/fx, देन dy/dx ऑफ fx, यहाँ fx क्या है हमारे पास cos x है। अब ये देखेंगे आप 2/x, cos x का माइनस साइन x, तो माइनस साइन x अपॉन cos x, ये बना 2/x माइनस 10x, ये बना। इन केस आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की होती, आप भूल गए लॉग की प्रॉपर्टी लग रही नहीं लगाई, आप डायरेक्ट आपने करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा देखिए सेकंड अप्रोच क्या है, dy/dx बराबर, तो log fx का क्या होता है 1/fx, ये पूरा fx हो गया, तो पहले राउंड में हो गया 1/x² इंटू cos x, dy/dx ऑफ, अब आपको करना होगा x² इंटू cos x का करना होगा, तो ये आपका x² इंटू cos x ये रहा। अब यहाँ आप प्रोडक्ट रूल आपको अप्लाई करना होगा, 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे आप। फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ cos x प्लस cos x dy/dx ऑफ x², क्योंकि प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ये आप कर चुके हैं x² इंटू cos x, अब cos x का माइनस साइन x है, माइनस x² साइन x, और ये हो गया 2x cos x, ये आ गया। अब सेपरेट करोगे आप तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, आप इसके नीचे इसको लिख करके दिखाओगे तो आपको वही चीज़ आपको मिल जाएगी। y इज़ log रूट x-1 अपॉन x+1, तो इसको पहले सिम्प्लीफाई करते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से, log x-1 x+1 इट इज़ 1/2 स्क्वायर रूट है। अब लॉग की पहली प्रॉपर्टी मैंने लगाई log x⁴n वाली, तो 1/n यानी 1/2 log x-1 अपॉन x+1, और देखिए 1/2 log m/n, log m माइनस log n, इट इज़ log x-1 माइनस log x+1, ये आपका सिम्प्लीफाई करके आ गया। आप करिए डिफ्रेंशिएट, d/dx ऑफ y 1/2 आउटसाइड रहेगा, log fx 1/fx, देन डेरिवेटिव ऑफ x-1 minus again here 1/x+1, then d/dx of x+1. Now the final answer is derivative of x is 1, derivative of 1 is 0, finally it is 1/x-1 minus 1/x+1. Again the same concept here, derivative of x 1 and derivative of 1 0. This is the final answer. Y sin x, derivative of sin x is cos x. x इज़ रिप्लेस बाई अदर फंक्शन दैट इज़ fx। अब ये सारी टी रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एक्स, सब में अगर x के प्लेस पे अदर फंक्शन आ गया तो चेन रूल इस तरह से वर्क करेगा, साइन fx में साइन का कॉस fx dy/dx ऑफ fx, ऐसे वर्क करेगा। एग्जाम्पल देखिए, y इज़ साइन x⁴, तो ये साइन fx हो गया, ये पावर फंक्शन नहीं है बच्चों, ये क्योंकि x की पावर लगी हुई है ये, तो इसको आप d/dx of sin fx is cos fx, so it is cos x⁴, dy/dx of x⁴, इस तरह वर्क करेगा। x4 का हो जाएगा 4x3, मल्टीप्लाई में बच्चों आगे लिख सकते हैं इसको आप 4x3 देन cos x⁴। यही अगर होता आपके पास sin 4x, दोनों में फ़र्क है। आप ये आपका पावर फंक्शन है, पूरे फंक्शन की पावर लगी हुई है, ये पावर फंक्शन से कवर होगा। इट इज़ d/dx ऑफ y 4 साइन, क्योंकि पावर फंक्शन में आपकी पावर रिड्यूस कर लेते हैं आप, देन dy/dx ऑफ साइन x। नाउ द साइन x इज cos x, सो इट इज़ 4 sin³ x एंड cos x, ये आपका इस तरह से होगा।
नाउ y इज साइन e टू द पावर x। अब साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन का आपको पता है cos x है, साइन का डेरिवेटिव cos x है, तो cos और x के प्लेस पे क्या था ex। अब आपको ex का डेरिवेटिव करना है, ex का डेरिवेटिव ex होता है, मल्टीप्लाई में है, नंबर 1 पर आपने इसको लिख लिया। सेम साइन log x है तो ये साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव cos x होता है, तो साइन का cos आ गया, x के प्लेस पर log x था, ये log x आ गया। कई बार बच्चे गलती साइन x का cos x लिख देते हैं, x नहीं, जो x के प्लेस पे फंक्शन है वो लिखा जाएगा। देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, दिस इज द एफ एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/x आ गया आपके पास। नाउ द नेक्स्ट वन इज cos tan इनवर्स x प्लस 4। अब cos x होता था हमारे पास, तो x के प्लेस पे पूरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए ना, sin x cos x tan x, तो cos x के प्लेस पे ये पूरा आ गया tan इनवर्स x प्लस 4। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x मिस दिस होल, देन डेरिवेटिव ऑफ x के प्लेस पे जो लिखा है उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, 4 का 0 हो जाएगा और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट इज sec x टू द पावर 4 प्लस 4, तो sec देन x के प्लेस पे ये आ गया, तो sec x का डेरिवेटिव क्या है sec x tan x, तो sec x tan x मत लिखिएगा, x के प्लेस पे तो पूरा फंक्शन ये आ गया क्योंकि ये sec fx बन गया, और sec fx का क्या होगा sec fx tan fx देन डेरिवेटिव ऑफ fx, तो sec x, ये sec x का हो गया sec x tan x देन डेरिवेटिव ऑफ x के प्लेस पे जो लिखा है उसको आपने दोबारा से करना है। तो x4 का 4x3, 4 का कितना हो गया 0, ये पूरा ऐसे कॉपी करिए यहाँ से यहाँ तक, लास्ट में 4x3 आपके पास और आ जाएगा। नेक्स्ट इज y cos sec tan x, तो x के प्लेस पे पूरा क्या यूज है tan x, तो cos sec x का डेरिवेटिव क्या है माइनस के cos sec x cot x, तो माइनस cos x x के प्लेस पे tan x यूज करना है आपको, cot x के प्लेस पे tan x यूज करना है, तो माइनस cos sec x cot x के प्लेस पे जो फंक्शन यूज हो रहा है उसको यूज कर लिया, देन डेरिवेटिव ऑफ tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, इसको आप इस तरह कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट tan इनवर्स x3, तो इन्वर्स फंक्शन में वही काम करेगा, x के प्लेस पे अदर फंक्शन आ जाए तो चेन रूल काम करेगा, तो tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स के प्लेस में यहाँ पे x3 है, इसका स्क्वायर देन dy/dx ऑफ x3 का 3x स्क्वायर हो गया, ये आपका 1 प्लस एक्स की पावर 6 बन गया। नाउ कॉट इनवर्स रूट एक्स, यहाँ भी चेन लग जाएगा क्योंकि x के प्लेस पे अदर फंक्शन यूज हो गया, तो कॉट इनवर्स x का था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे रूट एक्स है इसका स्क्वायर देन dy/dx ऑफ एफ एक्स रूट एक्स का। अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है 1/2 रूट एक्स dy/dx ऑफ 1 हो जाएगा, छोड़ दिया, फाइनल आंसर हो गया। अब ये मिक्स प्रॉब्लम है, देखिएगा cos टू द पावर 4 x टू द पावर 4, तो पहले राउंड में देख के ही पता लग गया होगा ये पावर फंक्शन है क्योंकि पहला टी रेशियो कॉस था, इस पर पावर आ गई है, तो ये पावर फंक्शन का एग्जांपल हो गया। तो इसको हम पावर ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ जो पावर लगी होती है बाहर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो अब आप बेहतर समझ सकते हैं ये पावर फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये पावर फंक्शन, ये वाली पावर रिड्यूज होगी पहले ना, ये तो पहले राउंड में यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो 4 आगे आ गया, cos³ x4 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो यहीं से आप सीधे समझ जाओगे ये पावर, ये वाली पावर रिड्यूज होगी, पावर फंक्शन में ये है पावर, ये आपकी रिड्यूज होकर 3 बन गई, तो 4 cos³ x की पावर 4, क्योंकि पूरा फंक्शन आपके पास ये है ना पावर को छोड़ के, तो dy/dx किसका करते हैं आप, पावर को छोड़ के, मेन पावर ये थी इसको छोड़ के ये बचा, cos x की पावर 4 को आप डिफ्रेंशिएट करोगे। अब अगले स्टेप में आ जाइए, cos x टू द पावर 4, यानी अब ये हो गया cos x वाला हो गया, cos का माइनस होता है, ब्रैकेट जरूर यूज करिएगा बच्चों, अगर ब्रैकेट यूज नहीं किया सब गड़बड़ हो जाएगा। cos का होता है माइनस साइन x की पावर 4, फिर x की पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करोगे, x की पावर 4 का 4x³ हो गया, ये माइनस फाइनली आगे ले आइए आप, सबको मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर बन जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन इज sin³ x, ये पावर फंक्शन है क्योंकि टी रेशियो, पहला टी रेशियो ये है भाई, इसके ऊपर लग गई है पावर, तो ये पावर फंक्शन हो गया क्योंकि टी रेशियो में यहाँ पर लगी है, बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो sin x होल क्यूब ऐसा लिखा जा सकता है, तो इसलिए क्या है ये आपका पावर फंक्शन ये है, ये पावर रिड्यूज होगी आपकी, तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया, 2 लिख दिया यहाँ पर क्योंकि पूरे के पावर ना 3 आ गया 3 sin² x। अब dy/dx किसका करोगे आप, पावर फंक्शन में पावर को हटा के जो बचता है, तो इसको हटा दीजिए, पावर को क्या बचा sin x, बच्चे कई बार sin x का करने लग जाते हैं, पावर तो ये है मेन पावर, इसको हटा के जो है वही तो fx है आपका, ये fx ये हो गया, fx टू द पावर n ये है, तो ये तो आपका f है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dx ऑफ sin x। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको, ये तो कॉपी किया आपने, sin x का आ गया, ये sin x, तो sin x का क्या होता है cos sin x देन dy/dx ऑफ sin x, तो फाइनल स्टेज में आपका sin x का cos x और आ जाएगा। सपोज y इज
रूट कॉट एक्स की पावर 8। तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन का आपको बताया गया था 1/2 पूरा ये आ जाएगा आपके पास, देन d/dx ऑफ स्क्वायर रूट के साइन को हटा के जो बचेगा उसका करना होगा। आप चलिए, ये तो हो चुका, कॉपी किया आपने। अब ये बन गया कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर ये पावर फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना। तो कॉट एक्स का होता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स के प्लेस पे क्या x8 का दोबारा से आपको करना है। तो अगले स्टेप यहाँ तक पूरा कॉपी करिए और ये हो गया 8x⁴ आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन इज वाई tan 3x + 4 बाई साइन 8x + 1 डिवीजन फॉर्म में है, तो डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे आप। ये फर्स्ट फंक्शन, नोमिनेटर को हम फर्स्ट फंक्शन बोल देते हैं, डिनोमिनेटर को सेकंड फंक्शन। तो क्या होता है, सेकंड फंक्शन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया आपने। अब आप कर लीजिए बच्चों, ये चेन रूल से कवर होगा, ये तो ऐसी कॉपी कर लिया आपने। तो tan x का क्या है, सेक स्क्वायर 3x + 4, देन डेरिवेटिव ऑफ 3x + 4 को डायरेक्ट मैंने 3 प्लग कर लिया, ये ऐसी कॉपी किया। साइन का हो गया कॉस, देन 8x + 1 का 8 हो गया, ये आंसर आ गया। अगला है वाई इज कॉस साइन रूट एक्स। तो कॉस फंक्शन का आप जानते हैं बच्चों, कॉस एक्स के प्लेस पर पूरा ये लिखा है, देखिए हमको टी रेशियो पता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक। तो कॉस एक्स ये पूरा एक्स है आपका, तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन देन एक्स, ये आपके पास एक्स आ गया। अब जिसको तुमने एक्स बोला, जो एफ एक्स आपके पास है, इसको डिफ्रेंशिएट करा आपने। अगले स्टेप में आपका ये तो कॉपी किया आपने, साइन एफ एक्स हो गया, फिर यानी साइन एक्स होता है, साइन एक्स है नहीं, एफ एक्स पढ़ लो। तो साइन एफ एक्स का हो गया कॉस एफ एक्स, देन एफ एक्स को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और एक्स का 1 होता है, स्टॉप कर दिया आपने। अब एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1 to 8 NCERT, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 1 to 10 ये आपको करने हैं। और इसके दो डिफ्रेंसिबिलिटी के, जब डिफ्रेंसिबिलिटी एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आगे में, तब करेंगे। अभी आपको 1 to 8 ये करने हैं और 1 to 10 ये करने हैं। ग्रुप में पोस्ट करिए सारे के सारे क्वेश्चन, और वीडियो देखने के बाद लाइक करिए, अपने कमेंट बॉक्स में भेजिए। अभी तक कोई कमेंट नहीं भेजा आपने।